VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند پاک سیز فائر پر ٹرمپ نے پھر پلٹی ماری، تجارتی فوائد کی پیشکش کر کے دونوں نیوکلیائی طاقتوں کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے کا دعویٰ۔ ہند پاک سیز فائر پر ٹرمپ کے 5 پرانے دعوے۔ پہلا، 10 مئی ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ میں دونوں ممالک کو کامن سینس اور سمجھداری والا فیصلہ لینے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا، 11 مئی مجھے ہندوستان اور پاکستان کی مضبوط قیادت پر بہت فخر ہے، جنہوں نے طاقت اور دانشمندی اور ہمت کا مظاہرہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ اب موجودہ کشیدگی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کشیدگی لاکھوں لوگوں کی موت اور تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ تیسرا، 12 مئی میں نے نیوکلیائی جنگ روک دی ہے۔ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کرانے میں مدد کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سیز فائر مستقل ہوگی۔ دونوں ممالک کے پاس بہت سارے نیوکلیائی ہتھیار ہیں، اس سے ایک تباہ کن نیوکلیائی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ چوتھا، 13 مئی دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر میں ثالثی کے لیے میں نے کافی حد تک کاروبار بزنس کا استعمال کیا۔ میرا سب سے بڑا خواب امن قائم کرنے کا ہے۔ میں تقسیم نہیں، اتحاد چاہتا ہوں۔ پانچواں، 15 مئی میں نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی نہیں کرائی، بلکہ میں نے مدد کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے کیا، لیکن یہ یقینی ہے کہ گزشتہ ہفتہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کچھ ہوا، میں نے اسے حل کرنے میں مدد کی۔ حکومت نے امریکی دباؤ میں پاکستان کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ کانگریس، نئی دہلی۔ کانگریس نے مودی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ہندوستان امریکی دباؤ کی وجہ سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے اجلاس میں پاکستان کو قرض دینے سے متعلق تجویز پر ووٹنگ سے غیر حاضر رہا، جبکہ اسے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں کے حق میں ووٹ دینا چاہیے تھا۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رویش نے ہفتے کو یہاں کہا کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اب پاکستان کو $2 ارب سے زیادہ کا قرض منظور کرنے پر IMF پر تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان واحد ملک تھا جس نے 9 مئی کو قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور بعد میں مودی حکومت کے حامیوں نے دلیل دی کہ ہندوستان کے پاس یہی واحد متبادل تھا۔ میں راشٹر سہارا روز نامے کی خبریں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، آگے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ اصل میں ایگزیکٹو بورڈ میں نہیں ووٹ دینے کا انتظام ہے۔ روس نے ستمبر 2016 میں یوکرین کو قرض کی تجویز پر
नहीं में वोट दिया था और ख़ुद हिंदुस्तान ने 11 सितंबर 2005 को जिम्बाब्वे के अखराज के मामले पर नहीं में वोट दिया था। और भी खबरें हैं, सुनिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वफद में थरूर के नाम पर तनाज़ा। नई दिल्ली। मरकज़ी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर और सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ह करने के लिए कुल जमाती अरकान पार्लियामेंट के 7 वफूद तश्कील दिए हैं। ये वफद दुनिया के बड़े ममालिक बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक का दौरा करेगा। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने हफ्ते को वफद की क़ियादत करने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी कर दिए। इसमें कांग्रेस के वाहिद रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का नाम भी है। अब कांग्रेस ने कहा है कि उसने मरकज़ी हुकूमत को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि जुम्मा 16 मई की सुबह पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से बात की। उन्होंने बैरून मुल्क भेजे जाने वाले वफद के लिए 4 अरकान पार्लियामेंट के नाम मांगे थे। कांग्रेस ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि जुम्मा 16 मई की सुबह पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से बात की। उन्होंने बैरून मुल्क भेजे जाने वाले वफद के लिए 4 अरकान पार्लियामेंट के नाम मांगे थे। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरू गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा ब्रार के नाम पेश किए थे। दूसरी तरफ शशि थरूर ने वफद की क़ियादत की ज़िम्मेदारी देने पर मरकज़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं हालिया पेशरफ्त पर अपने मुल्क का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए 5 अहम ममालिक के दारुल हुकूमतों में एक कुल जमाती वफद की क़ियादत करने के लिए हुकूमत हिंद की दावत से फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। जब कौमी मफाद की बात होगी और मेरी खिदमत दरकार होंगी तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। इससे कबल शशि थरूर ने 8 मई को मरकज़ी हुकूमत की तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक मजबूत पैगाम है। हिंदुस्तान ने 26 मासूम शहरियों की हलाकत का बदला लेने के लिए ठोस कार्रवाई की। कांग्रेस ने कहा था थरूर ने लक्ष्मण रेखा को पार किया। ऑपरेशन सिंदूर पर मरकज़ी हुकूमत की तारीफ़ करने पर कई कांग्रेस लीडर शशि थरूर से नाराज़ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 14 मई को दिल्ली में हुई थी। इसमें कुछ लीडरों ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये वक्त ज़ाती ख़यालात के इजहार का नहीं है बल्कि पार्टी के सरकारी मौक़िफ़ को वाज़ा करने का वक्त है। कांग्रेस एक जमहूरी पार्टी है लेकिन लोग अपनी राय का इज़हार करते रहते हैं। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा को अबूर कर लिया है। पार्लिमानी उमूर की वजारत ने वफूद की क़यादत करने वाले जिन 7
अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी किए हैं। उनमें थरूर के अलावा बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बेजवंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सोले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। उनकी क़यादत में 7 वफ़ूद 23 या 24 मई को हिंदुस्तान से रवाना होंगी। इसके बाद वो अगले 10 दिनों तक दुनिया के बड़े ममालिक बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक का दौरा करेंगे। वहाँ बताएंगे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का नज़रिया क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों और कैसे की गई। खबर रसा एजेंसी PTI के ज़राए ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट का वफ़द अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात जाएगा। हालांकि हुकूमत की तरफ से इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। शशि थरूर ने जो कुछ किया है ठीक किया है। जब मुल्क की हिफाजत की बात आती है तो इसी तरह के अक़दाम उठाने की ज़रूरत है। ये पार्टी की खिलाफ वर्जी भी नहीं है। पार्टी को खुश होना चाहिए था कि कांग्रेस के एक वफद की हुकूमत की तरफ से मांग हो रही है और वो इसे कबूल कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। हमेशा हमें चाहिए कि अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए और कोई गलत काम करती है तो उसकी तनकीद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हुकूमत की हर बात की तनकीद करें। ये गलत रवैया है, इसे छोड़ने की ज़रूरत है। इसी तरह हुकूमत करने वाली बीजेपी को भी चाहिए कि वो मुखालिफ पार्टियों के जो उसूल हैं, जो अच्छे काम हैं, उनकी सराहना हो और हमेशा अपोजिशन पार्टियों की तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह एक माहौल पैदा हो गया तो हमारा मुल्क वाकई तरक्की की तरफ जाएगा और हमारे मुल्क में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। हमें एक दूसरे को समझकर काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी, हुकूमत करने वाली पार्टियों को भी और मुखालिफ पार्टियों को भी हमारे मुल्क में अमन व अमान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है। और हुकूमत ने जो कदम उठाया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और सिखाया भी है, वो काबिल तारीफ़ है। ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा कदम है। इसकी सराहना तमाम हिंदुस्तानियों से हो रही है। खुदा करे कि हमारा मुल्क इसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाता रहे ताकि वो फिर से आतंकवादी कामों में पढ़ने की कोशिश न करे। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।